Hello students, good morning. Welcome to SIS Online Classes. Students, we were reading chapter 3, The Elephants and the Mice of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topic was animals and their sound. So we have completed this topic, animals and their sound, in our last video. And included this topic, we have solved exercise V. Look at the picture, choose the correct sound that each of them mix from the box of this chapter 3, which is page number 25 in our English literature book as we Sasta in our last video. And we have also solved exercise E, animals and their sound of this chapter 3 in our FAD English literature notebook. So we have completed exercise B and exercise E of this chapter 3 in our English literature book as we Sasta in our English literature FAD notebook in our last video. And students, today's our topic is articles. So all students pay special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read about article and included this topic. We shall read article and solve exercise M. Write A or N in the blanks, which is page number 26 of chapter 3 in our English literature book as we Sasta. And after students, we shall read and complete exercise F. Answer the following questions of this chapter 3 in our FAD English literature notebook. Okay, so let's see that article. Okay, so all students look at the page number 26 and let's see article. Learn about language. Okay, learn means सीखे, about means बारे में, language means भाषा के. Learn about language, it's your heading, it's mean भाषा के बारे में सीखिए. Look at these pictures, note the highlighted words. Okay, look at means देखिए, these means ये, pictures means चित्रों को, okay, तस्वीरों को. Look at these pictures, it's mean इन तस्वीरों को देखिए, इन चित्रों को देखिए. नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स. ओके, नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स, इट्स मीन कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, ये जो प्रकाशित किए गए शब्द हैं, ओके, इन पे नोट करिए, इन्हें ध्यान करिए. ओके, नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स, इट्स मीन प्रकाशित किए हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए. ओके, सो लेट्स सी पिक्चर. योर फर्स्ट नंबर पिक्चर, इट्स अ बुक. ओके, एक बुक है, तो अ बुक. ओके, एक किताब. And your second picture, it's a fan. Okay, a fan, it's mean एक पंखा. Okay, your third picture, it's a tree. A tree, it's mean एक पेड़. Okay, and your fourth picture, it's a ball. ये क्या है? एक बॉल है, and ball means game. Okay, it's mean a book, एक किताब, a fan, एक पंखा, a tree, एक पेड़, a ball, एक गेम. Okay, we use A before words that begin with the consonant sound. Okay, तो student we can see that all these words have A before it. Okay, जितने भी words हैं इनके पहले हमने A यूज़ किया हुआ है ना. तो student क्या रीज़न इनके पहले A यूज़ करने का? तो we use A. Okay, we means हम, use means प्रयोग करते हैं. ओके, ए मीन्स एक, बिफोर मीन्स पहले, वर्ड्स मीन्स शब्दों, दैट मीन्स जो, बिगिन मीन्स शुरू होते हैं, विथ मीन्स से या साथ में, द कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, साउंड्स मीन्स ध्वनियाँ. ओके, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स. इट्स मीन हम उन शब्दों से पहले ए का यूज़ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जिनकी जो बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, जिनका आरंभ व्यंजन ध्वनियों से होता है, उनके साथ हम ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनकी बिगनिंग, जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड्स, इट्स मीन व्यंजन ध्वनियों से होती है, उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं. क्लियर? Now look at these pictures and note that highlighted words. Okay, तो स्टूडेंट फर्स्टली लुक दैट ऑल दीज वर्ड्स. ओके, जितने भी वर्ड्स अभी हमने रीड किए हुए कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बुक. ओके, तो स्टूडेंट्स हियर वी टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट की नहीं. ओके, कॉन्सोनेंट साउंड इट्स मीन व्यंजन ध्वनिया की बात करें, ना कि ओनली कॉन्सोनेंट व्यंजन. ओके, तो स्टूडेंट आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट है. ओके, ए ई आई ओ यू के बाद जो हमारे रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू को लीव करके, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना. वी हैव रीड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, देयर आर 5 वॉवेल्स इन अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू, एंड रिमेनिंग लेटर्स वी कॉल कॉन्सोनेंट्स. और जितने भी रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, बचे हुए लेटर्स होते हैं, बी सी डी एफ जी, ओके, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो स्टूडेंट आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, बिकॉज अवर टॉपिक आर्टिकल इज बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड, नॉट ओनली कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल. ओके, तो आपको क्या करना है? पहले वर्ड को रीड करना है. अगर उसका साउंड जो है, उसकी बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो आपको उसके पहले ए का यूज़ करना है. क्लियर? तो रीड विथ मी. बुक. ओके, तो बुक बा से स्टार्ट हो रही है, इसकी बिगनिंग बा से हो रही है, और जो बी होता है वो हमारे स्टूडेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने इसके पहले ए का यूज़ किया. ओके, रीड विथ मी नेक्स्ट वर्ड, फैन. ओके, फैन फा से स्टार्ट हो रहा है, और फा. ओके, इट्स मीन फा, एफ, इट्स अवर कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया हो. एंड नेक्स्ट रीड विथ मी, ट्री. ओके, ट्री इट्स स्टार्ट विथ ट्री विच इज़ अवर कॉन्सोनेंट. ओके, जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हमने इसके पहले ए का यूज़ किया. एंड आफ्टर द स्टूडेंट, बॉल. ओके,
रीड विथ मी, बॉल बा से स्टार्ट हो रहा है, बा इट्स मीन बी से स्टार्ट है, एंड वी नो दैट बी इट्स अवर कॉन्सोनेंट वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है चूँकि हमारा बॉल, तो इसलिए हमने इसके पहले ए का यूज़ किया हुआ है। क्लियर? नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स। ओके, नाउ मीन्स अब लुक एट मीन्स देखिए, दिस मीन्स ये पिक्चर्स मीन्स चित्रों को, एंड मीन्स और नोट दी हाईलाइटेड वर्ड्स, इट्स मीन नोट मीन्स ध्यान दीजिए, हाईलाइटेड मीन्स प्रकाशित किए हुए वर्ड्स मीन्स शब्दों को। ओके, नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब इन चित्रों को देखिए और प्रकाशित किए हुए शब्दों को ध्यान दीजिए। ओके, लेट्स सी, योर फर्स्ट पिक्चर इज एन अम्ब्रेला। ओके, क्या है? एक अम्ब्रेला है। ओके, अम्ब्रेला मीन्स छाता, एक छाता। ओके, योर सेकंड पिक्चर इट्स एन एप्पल, एक एप्पल है, एप्पल मीन्स सेब। ओके, एन एप्पल इट्स मीन एक सेब। योर थर्ड नंबर पिक्चर इट्स एन एगल। ओके, तो इट्स एन एगल, एक एगल है। एगल मीन्स स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ एगल दैट बाज होता है। ओके, तो ये एक बाज का पिक्चर है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फोर नंबर, एंड योर फोर नंबर पिक्चर इट्स एन ओवन, एक ओवन है, एंड ओवन मीन्स स्टूडेंट्स, ओवन मीन्स होता है चूल्हा या भट्टी। ओके, तो स्टूडेंट्स इट्स एन अम्ब्रेला, एक छाता, एन एप्पल, एक सेब, एंड एक इट्स मीन होता है कि एक चील। ओके, एंड ओवन इट्स मीन कि एक भट्टी या चूल्हा। ओके, तो स्टूडेंट्स we use and before words that begin with vowels a e i o u. ओके, we means हम use means प्रयोग करते हैं, and means and का and means होता है एक। ओके, बिफोर मीन्स पहले, वर्ड्स में शब्दों के, दैट मीन्स जो, बिगिन में शुरू होते, विथ मीन्स साथ में, वॉवेल्स मीन्स स्वरों के, ए ई आई ओ यू। ओके, वी यूज एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। उन शब्दों से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं जो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं। ओके, जिनकी जो बिगनिंग होती है ना वो वॉवेल, यहाँ पे ओनली वॉवेल राइट है। ओके, बट वॉवेल साउंड होगा कि जिनकी बिगनिंग वॉवेल साउंड से होती है, स्वर ध्वनि से होती है। ओके, स्टूडेंट्स, आई रिपीट माई वर्ड्स दैट दिस टॉपिक आर्टिकल बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड, नॉट ओनली कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। ओके, हमारे जो टॉपिक है ना आर्टिकल, ये कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल साउंड पे बेस्ड है, ना कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल पे। जब स्टूडेंट आपको बोला जाए कि आर्टिकल ए एन का यूज़ करिए, तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि देखना हाँ अम्ब्रेला है, यू से स्टार्ट है, यू हमारा वॉवेल होता है, एन राइट कर दिया। नो, ऐसे नहीं करना आपको। इसके जैसे इसके रूल्स है वैसे फॉलो करना है। आपको पहले वर्ड को रीड करना है, फिर नोटिस करना है कि ये जो वर्ड की बिगनिंग वॉवेल से हो रही है, अगर वॉवेल साउंड से हो रही है इसकी बिगनिंग तो एन राइट डाउन करेंगे इससे पहले, एंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से इसकी बिगनिंग हो रही है तो इसके पहले वर्ड से पहले, आई मीन टू से कि इन वर्ड से पहले हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जो ऐसे वर्ड जिनकी बिगनिंग वॉवेल साउंड से होती है, इट्स मीन ए ई आई ओ यू ध्वनियों से होती है, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। क्लियर? ए और एन दोनों मीन्स होता है एक। ओके, बट जो वॉवेल साउंड से हमारी जो वर्ड्स की बिगनिंग होती है उनके पहले एन का यूज़ करते हैं, और ऐसे वर्ड जिनकी बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, व्यंजन ध्वनियों से होती है, उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, रीड विथ मी दिस वर्ड अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला स्टूडेंट्स यू से स्टार्ट है, बट जब इसका हम साउंड करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट है, अम्ब्रेला। ओके, हम लोग यूम्ब्रेला नहीं बोलते, अम्ब्रेला बोलते हैं ना, तो अम्ब्रेला बोलते हैं ना, तो अम्ब्रेला। ओके, वी कैन लिसन दैट अम्ब्रेला आ से स्टार्ट है, एंड ए आ मीन्स ए है ना, और जो ए है वो हमारा वॉवेल है। ओके, तो वॉवेल साउंड करे ना अम्ब्रेला आ से है, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। क्या? एंड रीड दिस सेकेंड नंबर वर्ड, रीड विथ मी, एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट है और ए हमारा वॉवेल होता है। ओके, तो स्टूडेंट हम एप्पल के पहले एन राइट डाउन करेंगे। क्लियर? ईगल, ईगल मीन्स स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ ईगल दैट चील। ओके, तो ईगल ई से स्टार्ट है, ई हमारा वॉवेल होता है, इसलिए हमने इसके पहले एन का यूज़ किया है। क्लियर? ओवन, ओवन ओ से स्टार्ट है, ओवन ओ साउंड से स्टार्ट है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट है। ओके, ओ साउंड से स्टार्ट है, विच इज़ आवर वॉवेल साउंड। ओके, तो इसलिए इसके पहले हमने एन का यूज़ किया है। क्लियर? This time we have read about vowel and vowel sound and consonant. We have read that कि हम किससे पहले, कौन से वर्ड से पहले ए का यूज़ करते हैं और कैसे, किन वर्ड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। क्लियर? एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड यूज़ ऑफ ए और एन। ओके, तो स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज़ क्लियर हो गया ना, कि ऐसे वर्ड्स जिनकी बिगनिंग जो होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, व्यंजन ध्वनियों से होती है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे अगर कोई वर्ड आप रीड कर रहे हैं और उनकी बिगनिंग इन लेटर से होती है, ओके, ए आई यू को लीव करके ऐसे लेटर से होती है जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनकी बिगनिंग अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही, इन लेटर्स से हो रही है, ओके, इन लेटर्स के साउंड से हो रही है, तो हम उनके पहले ए का यूज़ करेंगे। और ऐसे वर्ड जिनकी बिगनिंग वॉवेल साउंड से हो रही है, ए ई आई ओ यू के साउंड से हो रही है,
ओके अगर आप कोई वर्ड रीड कर रहे हो तो उसमें ए ई आई यू से उनकी बिगनिंग हो रही है तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एम. सो लुक एट दिस एक्सरसाइज एम. योर एक्सरसाइज एम इज राइट ए और एन इन दी ब्लैंक्स. ओके आपको क्या करना है, ए और एन का राइट करना है. ओके राइट मीन्स लिखिए, ए मीन्स ए और मीन्स अथवा, एन मीन्स एन इन दी ब्लैंक्स. ओके रिक्त स्थानों में ए और एन लिखिए. ओके आपको या तो ए लिखना है या तो एन. ओके इसके साउंड के अकॉर्डिंग, इस वर्ड की बिगनिंग साउंड के अकॉर्डिंग. क्लियर? लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज बोट, BOAT. स्टूडेंट्स रीड विथ मी, बोट. ओके तो बोट इट्स अवर स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है बोट, है ना. तो बोट बा से स्टार्ट हो रहा है एंड वी नो दैट बी इट्स अवर कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट है. ओके कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर बिफोर दिस वर्ड बोट ए. ओके इसके पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे, ए राइट डाउन करेंगे. क्लियर? and students let's see second number word. Your second number word is igloo. Okay students boat means क्या होता है, boat means now. and okay let's see second number word and your second number word is igloo. igloo means students igloo means होता है snow house. okay snow house या snow hut बोलते हैं. इट्स मीन होता है बर्फ़ के घर को बोलते हैं igloo. okay and students read with me this word igloo. igloo is student we can see that this word start with I से start हो रहा है, बट इसका जब साउंड कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन इसका ई से स्टार्ट है. ओके हम लोग आइग्लू नहीं बोलते, इग्लू बोलते. ओके तो इसको जब हम रीड कर रहे हैं तो इसका जो बिगनिंग साउंड है वो ई से हो रहा है ना, इग्लू ई साउंड से हो रहा है. ओके एंड इसकी बिगनिंग ई से हो रही है, ई साउंड से. एंड वी नो दैट ई इट्स आवर वॉवेल. सो स्टूडेंट्स हियर बिफोर दिस वर्ड इग्लू वी राइट एन. ओके बिकॉज दिस वर्ड इग्लू स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड ई. क्लियर? तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर एंड बिफोर दिस वर्ड इग्लू. ओके let's see third number word. Your third number word is umbrella. okay stand read with me, umbrella u से start है. okay u से start है बट इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से, ए से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला. ओके हम लोग यू अम्ब्रेला नहीं बोलते, अम्ब्रेला बोलते हैं. क्लियर? तो अम्ब्रेला आ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट एंड वी नो दैट आ इट्स अवर जो ए है, आ मीन्स ए एंड इट्स अवर वॉवेल. ये हमारा वॉवेल है चूँकि दिस वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल साउंड. सो वी यूज़ हेयर बिफोर दिस वर्ड अम्ब्रेला एंड. इस वर्ड के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे बिकॉज दिस वर्ड स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड ए. ओके let's see four number word. Your four number word is egg. okay egg means अंडा. okay and students read with me this word egg. okay ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट है बट हम लोग इग नहीं पढ़ते, हम लोग इसे एग रीड करते हैं. ओके एग से स्टार्ट हो रहा है एंड वी नो दैट ए इट्स आवर वॉवेल. वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है चूँकि हमारे वर्ड. तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर दिस बिफोर दिस वर्ड एग एन. ओके इस वर्ड के पहले हम एन का यूज़ करेंगे बिकॉज दिस वर्ड स्टार्ट विथ a. okay which is our vowel. okay and student write down here and before this word egg. clear? let's see fifth number word. your fifth number word is kitten. kitten means student बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं kitten. okay cat's baby we call kitten. clear? तो स्टूडेंट्स रीड विथ मी दिस वर्ड किटन. किटन का से स्टार्ट हो रहा है, क्या इट्स मीन का. ओके के से स्टार्ट है, इट्स मीन कि के इट्स अवर कॉन्सोनेंट. तो दिस वर्ड किटन इट्स स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके सो हियर वी यूज बिफोर दिस वर्ड किटन ए. ओके इससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट राइट डाउन ए बिफोर दिस वर्ड किटन बिकॉज दिस वर्ड किटन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड के. क्लियर? स्टूडेंट लेट्स सी सिक्स नंबर वर्ड. योर सिक्स नंबर वर्ड इज फॉर्क. ओके फॉर्क मीन्स होता है कांटा. ओके कांटा इट्स मीन जो स्पून होती है ना, वो जो वो एक निडल जैसी निडल जैसे इसमें होते हैं वैसे स्पून जिससे हम लोग चाउमीन मैगी खाते हैं उसे बोलते हैं फॉर्क. इट्स मीन होता है कांटा. ओके स्टूडेंट रीड विथ मी दिस वर्ड फॉर्क. फॉर्क ओके फा से स्टार्ट है एंड वी कंडीशन दैट दिस वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं ना. फॉर्क फा से स्टार्ट है, एफ से इट्स मीन तो एफ इट्स आवर कॉन्सोनेंट साउंड. टू स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर बिफोर दिस वर्ड ए. ओके ए फॉर्क होगा. ए फॉर्क मीन्स एक कांटा. ओके एक कांटा इट्स मीन एक स्पून कांटे वाली. ओके तो स्टूडेंट मैच योर आंसर. योर फर्स्ट नंबर आंसर इज ए बोट. इट्स मीन एक नाव. सेकेंड एन इग्लू इट्स मीन एक बर्फ का घर. थर्ड एन अम्ब्रेला इट्स मीन एक छाता. फोर्थ एन एग इट्स मीन एक अंडा. फिफ्थ ए किटन इट्स मीन एक बिल्ली का बच्चा. सिक्स ए फॉर्क इट्स मीन एक कांटा. क्लियर? So student we have completed this exercise and I hope you must have understood this exercise. Now we are going to read and solve exercise F of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook. So let's see exercise F. Exercise F is answer the following questions. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ओके सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज विच वर्ड्स बिफोर डू वी यूज ए. ओके विच मीन्स कौन से वर्ड्स मीन्स शब्दों के, बिफोर मीन्स पहले, डू इट्स सो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, वी मीन्स हम,
यूज़ मीन्स प्रयोग करते, ए मीन्स एक, ओके। तो विच वर्ड्स बिफोर डू वी यूज़ ए, ओके, किन शब्दों से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर आंसर इज वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके। वी मीन्स हम, यूज़ मीन्स प्रयोग करते, ए मीन्स एक, बिफोर मीन्स पहले, वर्ड्स मीन्स शब्दों के, दैट मीन्स जो, बिगिन मीन्स शुरू होते हैं, विथ मीन्स साथ में, द कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन एंड साउंड्स मीन्स ध्वनियाँ, ओके। वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, इट्स मीन हम उन शब्दों के पहले ए का यूज़ करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जो व्यंजन ध्वनियों से स्टार्ट होते हैं, ओके। ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, इट्स मीन व्यंजन ध्वनिया से स्टार्ट होते हैं, उनके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स यू नो व्हाट्स अवर कॉन्सोनेंट साउंड लेटर्स, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड लेटर क्या है? स्टूडेंट बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ओके। 21 हमारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, ओके। तो ये जो लेटर्स हैं ना हमारे, ये हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए। तो ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, व्यंजन ध्वनियों से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, योर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज ब्लैंक बोट, ओके। तो बोट इट्स स्टार्ट विथ बी साउंड एंड बी इट्स आवर कॉन्सोनेंट, ओके। कॉन्सोनेंट्स है और चूँकि बी साउंड कर रहा है, बी हमारा चूँकि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से इस वर्ड की बिगनिंग हो रही है, इसलिए स्टूडेंट हियर वी यूज़ ए बिफोर दिस वर्ड बोट, ओके। इस वर्ड के पहले जो वर्ड है बोट, इससे पहले हमने ए का यूज़ किया है, क्लियर। ए बोट इट्स मीन एक नाउ, ओके। लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल, योर सेकंड नंबर वर्ड इज किटेन, ओके। किटेन इट्स मीन होता है कैट्स बेबी, बिल्ली का बच्चा। रीड विथ मी दिस वर्ड किटेन, इट दिस वर्ड किटेन बिगिनिंग विद अ K sound and we know that K it's our consonant letter. Consonant letter इसकी beginning consonant sound से हो रही है K, okay. तो student we have read that we always use A before words that begin with consonant sound, okay. So students write down here A before this word A, okay. इस word से पहले हम A write down करेंगे। A kitten it's mean एक बिल्ली का बच्चा, clear। जो थर्ड नंबर वर्ड इज फॉर्क, फॉर्क मीन्स कांटा, जिससे हम लोग चाउमीन मैगी खाते हैं ना, ऐसी स्पून जिसमें नीडल जैसे होते हैं ना, उसे बोलते हैं फॉर्क, इट मीन कांटा। इसलिए रीड विथ मी दिस वर्ड फॉर्क, फॉर्क इट्स स्टार्ट विथ एफ लेटर and we have read that F it's our consonant, okay. This word start with F which is our consonant sound, okay. जो consonant sound से start हो रहा है चूँकि word, इस tense इसके पहले हमने A का use किया हुआ है, clear। Let's see question number second. Your question number second is which words before do we use and, okay, which means कौन से वर्ड में शब्दों के before means पहले, do it's your present indefinite tense helping verb in singular form, we means हम, use means प्रयोग करते and, okay। which words before do we use and, okay। तो किन शब्दों से पहले हम and का प्रयोग करते हैं, okay। तो students your answer is we use and before words that begin with vowel sounds, okay। A E I O U, तो ऐसे words, okay, ऐसे वर्ड जो vowel sound से स्टार्ट होते हैं, जो स्वर ध्वनियों A E I O U से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम and का यूज़ करते हैं, क्लियर। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनकी बिगनिंग, जिनकी शुरुआत ए ई आई ओ यू इट्स मीन वॉवेल साउंड, स्वर ध्वनियों से होती है, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, क्लियर। लेट्स सी एग्जांपल, योर फर्स्ट नंबर एग्जांपल इट्स ब्लैंक एग, ओके। तो एग स्टूडेंट्स, एग इट स्टार्ट विथ ए विच इज़ अवर वॉवेल, जो हमारा वॉवेल है। सो स्टूडेंट्स वी कैन लिसन दैट दिस वर्ड एग इट स्टार्ट विथ ए साउंड, ओके। ए से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा वॉवेल साउंड होता है, ओके। सो स्टूडेंट हियर वी यूज़ एन बिफोर दिस वर्ड एग, ओके। एग के पहले हम एन का यूज़ करेंगे, क्लियर, because this word start with vowel sound, clear। Let's see second number example. Your second number example is igloo, okay। igloo it's a stand, igloo means होता है snow house या snow hut, बर्फ का घर, okay। and egg means अंडा था, clear। तो स्टूडेंट igloo, read with me this word igloo, ई से स्टार्ट है ना, आई से इसका स्टूडेंट ये स्पेलिंग आई से राइट डाउन की है igloo की, बट स्टूडेंट्स दिस वर्ड igloo स्टार्ट विथ इन प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ओके। igloo, okay। and we can listen this word start with e which is our vowel, okay। vowel sound से start हो रहा है e से, तो स्टूडेंट we have read that we always use and before words that begin with vowel sound, ऐसे जो vowel sound से start होते हैं वर्ड ए ई आई यू के साउंड से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, ओके, के साउंड से स्टार्ट होते हैं, इनके पहले एन का यूज़ करते हैं। तो इस जो वर्ड है ना igloo, इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, क्लियर। लेट्स सी थर्ड नंबर एग्जाम्पल। योर थर्ड नंबर एग्जाम्पल इज ब्लैंक अम्ब्रेला, ओके। अम्ब्रेला, तो स्टूडेंट वी कैन सी दिस वर्ड स्टार्ट विथ यू से स्टार्ट हो रहा है, स्पेलिंग जब राइट डाउन की तो यू से स्टार्ट है, बट स्टूडेंट जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ से हो रहा है, ओके। यू कैन चेक, लिसन विथ मी, ओके, सॉरी रीड विथ मी, ओके। अम्ब्रेला, ओके, अम्ब्रेला, ओके।
लिसन अम्ब्रेला. ओके, सुना ना आपने, अम्ब्रेला आ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आ से स्टार्ट हो रहा है. एंड वी नो ए इट्स अवर वोविल साउंड. ए हमारा वोविल लेटर होता है जो वोविल का साउंड करता है ना. तो स्टूडेंट्स राइट ऑन हियर एंड बिफोर दिस वर्ड अम्ब्रेला, बिकॉज दिस वर्ड अम्ब्रेला स्टार्ट विथ ए साउंड विच इज़ अवर वोविल साउंड. ओके, सो स्टूडेंट, एन एग इट्स मीन एक अंडा, एन इग्लू इट्स मीन एक बर्फ का घर, एन अम्ब्रेला इट्स मीन एक छाता. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव read this exercise F. Okay, I have explained you this exercise F and I hope you must have understood this exercise F. You have no problem in this exercise F. Okay, मैं आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज F क्लियर हो गई होगी. इसके बहुत क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. ओके, सो सिंस टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट complete exercise M of this chapter 3 which is page number 26 in your English literature book as we Shastra, and after it note down exercise F, answer the following questions of this chapter 3 in your fair English literature notebook. It's a 2 days class work. Okay, and then your homework is that learn exercise M of this chapter 3 which is page number 26 from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो इसलिए आपका क्लास वर्क क्या है, आपको एक्सरसाइज M कंप्लीट करनी जो आपकी पेज नंबर 26 पे है. क्लियर, अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है. एंड आफ्टर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज जो F है ना, इसे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे एज इट इज़ नोट डाउन करनी. क्लियर, फर्स्टली मेंशन CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम. ओके, हेडिंग, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, एंड लास्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर. क्लियर, तो आपको एक्सरसाइज अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे कंप्लीट करनी है. इट्स अ 2 days क्लास वर्क, ये आपका क्लास वर्क है. एंड स्टूडेंट योर होमवर्क इज दैट, आपका होमवर्क क्या है कि आपको एक एक्सरसाइज लर्न करनी है अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से. क्लियर, तो ये आज आपका होमवर्क है. क्लियर, तो स्टूडेंट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास वर्क एंड होमवर्क. सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क. Complete exercise M of this chapter 3 which is page number 26 in your English literature book as we Shastra, and after it note down exercise F, answer the following questions of this chapter 3 in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.